The sex impulse is the single most physically magnetic power that pulls the life and the consciousness down from spirit in the higher centers in the brain, out through the coccygeal center into matter and body consciousness. The beginner in yoga meditation experiences all too definitely how grounded he is by the stubborn attachment of his life and energy to the body, sometimes without realizing that it is his uncontrolled thoughts and acts of sex that are primarily responsible for his earthbound condition. So, though here we are studying about the sex impulse, but sex को हिंदी में क्या बोला? कामा भाव बोला, काम बोला है ना? तो काम एक्चुअल में क्या है? Any kind of desire that we have, that is काम. And out of all the kama that we have, हमको याद है हमने पढ़ा था दुर्योधन is the desire, right, which keeps us tied over here into this word and this body. In the same manner, if we talk about the kama, which is governing almost everybody, because we are born from that, right? So that is what Guruji is he is elaborating more about it, because ये जो kama भाव होता है, it overpowers our buddhi, our atma, it overpowers everything. And that is why he says that the beginner in the yoga meditation experiences all too definitely how grounded he is. How grounded का मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हम कितने बेसिक एनर्जी में आ जाए, हम अपनी बेसिक एनर्जी को समझते हैं, एनिमलिस्टिक एनर्जी को. व्हेन वी आर बिकमिंग अ साधका, देन वी रियलाइज दैट हाउ मच आई एम ट्रैप्ड इन दिस एनर्जी ऑफ kama, I should say, not only sex but kama. And this kama is actually responsible for the earthbound conditions which we have. The seeker, after self realization, is therefore urged by yoga to take command of this rebel force. How do we take the command of this rebel force? He says married couples should practice moderation with love and friendship predominating. The unmarried should abide by the pure law of celibacy in thought as well as in act. So, जो मैं अभी recently सुन रही थी कि शास्त्रों में ये है कि अगर married couples है, once a month they can come together, because if they are not able to control, but at the same time it is for those people who are actually trying to go towards God. जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप गॉड रियलाइजेशन की ओर जा रहे हैं और आपको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप अपनी इस एनर्जी को, सो दे हैव गिवन दिस विधान कि वंस अ मंथ यू कैन डू इट. इवन आई रिमेम्बर इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, गुरुजी ने ये लिखा है कि उनकी माता जी ने गुरुजी की सिस्टर को, मतलब अपनी बेटी को, ऐसे जब वो बताते हैं ना, भाई शादी के बारे में बताते हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि सिर्फ तो हम और तुम्हारे पापा सिर्फ वंस इन अ ईयर वी मीट जस्ट विद द प्रॉमिस ऑफ दैट वी वांट टू क्रिएट अ चाइल्ड, राइट आरती जी, है ना? तो वो इतना कंट्रोल कौन कर पाएगा? सिर्फ वही कर पा सकता है फ्रेंड्स, जो योगी है ना? और हम लोग कौन है? हम उस रास्ते पे चल रहे हैं अभी, अपरिपक्व योगी हैं हम लोग, बट हम लोग वो योगी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना खाली यही इंस्टिंक्ट नहीं, सारे काम, जो भी काम हमारे पंच इंद्रियों से जिससे हम ड्रिवन है, उसको हम कंट्रोल कर सके. सो इसलिए उन्होंने बोला कि जो अनमैरिड है वो कंट्रोल करे, और जो मैरिड है वो कंट्रोल करे अपनी शादी में, और अनमैरिड शुड अबाइड बाय द प्योर लॉ ऑफ सेलिबेसी. तो ऐसे हर जगह बताया जाता होगा, परमहंस योगानंद जी ने अपने लेसन्स में ये भी बताया कि जो सेलिब्रेट होता है उसको कैसे क्या करना है, फिर इफ ही इज फीलिंग इट, व्हाट एक्शंस ही शुड टेक, वो हमारे शास्त्रों में इसके लिए भी विधान है, सब कुछ बताया गया है. They are blessed who are victorious over the sexual instinct, because suppression may only increase one's difficulties. Yoga teaches sublimation. Okay, तो that is why गुरुजी ने बोला कि जो योगा होता है वो उसका sublimation कर देता है, when you know the right way. The average person can be free of temptation by avoiding company, environments, books, movies that stimulate sex thoughts, and by training the armies of self-control by seeking good company, by proper diet, that is eating little or no meat, and taking more fresh fruits and vegetables. आप सबको मालूम होगा जब भी हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उसके अंदर हायर ची, जिसको बोलते हैं हायर एनर्जी होती है, उसके अंदर सटल एनर्जी होती है फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में.
by exercising regularly, by engaging in creative activities such as art, invention, writing. So Guruji ne यहाँ पे, while he is talking about sex, why he is saying that to have a control over it, you should engage in the creative activities, because the basic purpose of the sexual energy is to create. Whatever we create from the sacral chakra, the Swadhisthana chakra. So when you are creating a child, it is through the sacral chakra. But whenever you are creating any other thing in a matter, that is also an aspect of your sacral chakra. Above all, by keeping the thoughts on the wonder, peace, and all satisfying love of God, the insatiable desire for the pleasure of sex is transmuted by the divine love and ecstatic joy experienced in deep meditation. So, whatever people are seeking in that moment of the sexual conjugation with their partner, that happiness or whatever bliss that they find, it is actually the glimpse of God. The bravest of prophets dare to intrude their often unwelcome voices into the realm of this natural instinct to remind of the scripture injunctions against promiscuity, adultery, aberrant behavior, indulgences. The modern word calls free love. तो वो बोल रहे हैं कि जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं उन्होंने इस नेचुरल इंस्टिंक्ट के बारे में बोला है और कैसे मना किया है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, कि आपको एडल्ट्री नहीं करना है, आपको शादी में अपने लाइफ पार्टनर को धोखा नहीं देना है, आपको गलत बिहेवियर नहीं करना चाहिए, जिस और उस बिहेवियर को आज का समाज क्या बोलता है, फ्री लव. तो गुरुजी ने तो 1952 से पहले लिखा, ही वाज इन द यूएस सोसाइटी एट दैट टाइम. सो यू सी नाउ इंडिया इज बिकमिंग दैट, सो इट इज सो रिलेवेंट फॉर अस टुडे, जिसको हम फ्री लव बोल देते हैं. Slavery to sex is seldom based on love and it is never free. तो गुरुजी ये कह रहे हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में you are a slave to the sexual instinct, then it is actually not love and you are actually not free, because love is something which makes you free. Condemnation by religious moralists, however, does little more than create feelings of guilt in the so-called sinner, or cause him either to turn against religion or more commonly to justify his behavior by associating with those of comparable standards, the availability of whom is never lacking. तो जो हमने बात की, तो फिर अगर इस चीज को बहुत कंडेम करते हैं, कुछ रिलीजियस पीपल सिर्फ कंडेम करते हैं, तो जो लोग होते हैं जो कंट्रोल करना भी चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, तो वो गिल्ट फील करने लगते हैं. इसी तरह से दूसरे भी लोग हैं जो वो रिलीजन को ही बोल लगते हैं कि रिलीजियस लोग खराब है, स्पिरिचुअल लोग खराब है, वो ऐसे बोलने लगते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग. और वो क्या करते हैं, टू प्रूव दैट वी आर राइट, दे फाइंड विद देमसेल्व्स द सेम काइंड ऑफ पीपल एज दे आर राइट. ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाते हैं ना, कि 10 लोग, अगर मैं अगर खराब हूं तो मैं अपने जैसे 10 खराब लोग ढूंढ ही लूंगी ना, और मैं बोलूंगी कि देखो जब वो लोग भी ऐसे कर रहे हैं तो ये सही है ना. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी. सो गुरुजी इज सेइंग दैट वो लोग अपने जैसे लोग ढूंढ लेते हैं और वो रिलीजन को गलत बोलते हैं, और देन दे एंगेज इन द फ्री लव. Morality, like a chameleon, tends to take on the color of the circumambient society, but the inscrutable laws of nature through which God upholds his creation are ever unaltered by man's determinations. So, वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, whatever you do to go against the law of the nature, but ये जो God ने जो ये creation बनाई है, जो उसके laws है, you can never change that. If you ultimately want to find happiness, you will have to one day choose to abide by the laws of the nature. There is no other way. The simple fact is, man enslaves himself in bonds of karmic fetters whenever he transgresses any sacred code of nature. And then, when suffering results, he woefully cries, "Why me, Lord?" Understanding is the art of untying the Gordian knots bound by ignorance. तो यही हम सबके साथ होता है, हम लोग अपने आप को कार्मिक बॉन्ड्स में खुद से बांधते हैं. और हम क्यों कार्मिक बॉन्ड्स, मतलब क्या हुआ, कर्मा का मतलब क्या हुआ, एनी एक्शन दैट आई एम डूइंग which is against the law of the nature, that is a karmic bondage, because either I don't know the law of nature or I don't want to follow. Either ways, whenever I'm creating a karmic bondage, in the future it is going to create pain for me. But human consciousness is such, in those times also we don't want to understand that what is my fault. What we do, हम गुरुदेव से या भगवान से क्या बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट. तो वो कह रहे हैं इस इग्नोरेंस से छुटकारा कब मिलेगा हमको, जब हम जो भगवान की जो लॉ है उसको समझ लें. Thus, yoga teaches why men, nature's highest achievement, should have respect for her sacred mode of procreation, and correspondingly why it should not be abused. Consider as a start that every being is in essence a soul made in the image of God, neither man nor woman, but in the embodied state, possessing both a masculine and a feminine nature.
तो जब हमने यिंग yang वाला वर्कशॉप किया था, उसमें हमने यही समझा था कि हमारे अंदर ही फेमिनाइन क्वालिटी है और हमारे अंदर ही मस्कुलाइन क्वालिटी है। तो गुरुजी यहाँ पे यही बोल रहे, जो सोल है वो ना मेल है ना फीमेल है, राइट। तो हमारे अंदर दोनों ही क्वालिटीज है और हमको उन दोनों के ऊपर ही वर्क करना है। द मस्कुलिन, अब गुरुजी बता रहे हैं मस्कुलिन टेंडेंसीज हमारे अंदर कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर कौन सी होती है। द मस्कुलिन टेंडेंसी मैनिफेस्ट इन द पावर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सेल्फ कंट्रोल, exacting judgment, all the qualities of reason or intellect. So what is masculine polarity in us? The wisdom, the intellect, the ability to reason, which comprises of the discrimination, self-control, and the judgment. The emotional element in every being, consisting of the tenderness of love, sympathy, kindness, mercy, all the qualities of feeling, constitute the feminine nature. तो दोनों चीज हमारे अंदर होना जरूरी है। कोमल कहाँ है? हाँ कोमल, सही बोल रही हूँ मैं। खाली फेमिनाइन नहीं बन सकते, है ना। तो जी अपने जी। अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन भी होना चाहिए, राइट। राइट। तो हम जब ये दोनों चीजें अपने अंदर एम्बॉडी कर रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली बिकमिंग द इमेज ऑफ गॉड, because image of God is perfect. It is the Ardhanarishwara. It is the Vishnu and Lakshmi together, right? Unless these two phases are properly united and harmonized, spiritual procreation, whose offspring is permanent peace, is impossible. तो गुरुजी कह रहे हैं, जब हम अपनी इन पोलैरिटीज को समझ जाते हैं और हमारी ये पोलैरिटीज हार्मोनाइज हो जाती है, यूनाइटेड हो जाती है, तो कौन सा ऑफस्प्रिंग आता है? ऑफस्प्रिंग किसका आता है? परमानेंट पीस विद इन अस। We just, for example, for a mother, she just can't be loving only, right? Sometimes she has to punish also, sometimes she has to put certain rules also, right? So agar, or father cannot always be just be a provider and be a dictator. He should know, also know the tenderness, how to love a child, how to take care of the child. So when these two things are happening, आप खुद सोचो, अगर एक घर में एक छोटा बच्चा है और दोनों माँ बाप टेंडरनेस भी दिखा रहे हैं और जहाँ पे पनिशमेंट है या फिर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है वो दिखा रहे हैं, तो वहां पे पीस होगा कि नहीं? इन द सेम मैनर विद इन मी ऑल्सो, आई why we suffer most of the time, because we become too much attached to the polarity, uh, of the polarity which our body has. If I am a female, so I become too attached to my feminine aspect, क्योंकि मैं तो फीमेल हूँ, मैं तो प्यार प्यार करूंगी ही ना, मेरा तो कार्य है नरिश करूंगी ही ना। Yes, but in this I should not forget that I can also take the decisions in life. I can also be strict sometimes in life. I can be a co-creator with my life partner in the life, right? In the same manner, when a male only, in India it happens, right? एक आदमी को लगता है बस मैं आदमी हूँ तो फिर मैं किचन में भी नहीं जाऊंगा, मैं खाना भी नहीं बनाऊंगा। मैंने कौन सा अभी कुछ दिन पहले एक बहुत पुराना सा सीरियल है, सतीश कौशिक का, उसमें वो ये बोलता है कि उसका पता नहीं कहाँ पे ट्रेलर आ रहा था। वो बोलती है अपने हस्बैंड से, अच्छा मैं जा रही हूँ, खाना तुम्हारा खाना वहां रखा है लेना। अरे मैं तो मर्द हूँ, ऐसे बोल रहा है वो हर चीज में। मतलब उसमें ये तो कॉमेडी नाटक है वो कोई, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई जो पत्नी बोल रही है तुम ये कर लेना, अरे मैं तो मर्द हूँ, मतलब मैं तो आदमी हूँ, मैं नहीं ये करूँगा। तो उसमें क्या होता है, वी बिकम सो पोलराइज। तो हम जब हम बाह्य जगत में अगर हम पोलराइज हो जाएंगे, तो हम अंतर जगत में तो पोलराइज हो जाएंगे ना, है ना। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये तो हमें भूलना ही नहीं है ना। तो जितने हम, इट इज ऑलवेज टू वेज। चाहे आप अपनी जब ध्यान देखो, अगर आप फीमेल हो, आप देखना फीमेल्स के लिए ध्यान करना इजी है, क्योंकि फीमेल रिसेप्टिव है, राइट। तो उसको अंदर जाना, ग्रहण करना आसान है, राइट। लेकिन अगर आप देखो जो मंत्रा चैंटिंग होती है, मंत्रा चैंटिंग में व्हेन वी आर स्पीकिंग वी आर बिकमिंग एमिसिव, व्हेनेवर वी आर डूइंग यज्ञ वी आर बिकमिंग एमिसिव। तो आप देखोगे ये सब करने में मोस्टली मेल्स अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको करना आ जाता है। यस, विमेन सरेंडर एंड ट्रस्ट इजीली। तो विमेन सरेंडर ट्रस्ट करके आराम से ध्यान कर लेगी, जो गुरु ने बोला है कर लो, ठीक है। लेकिन कर्म कांड करने में आदमी को ज्यादा मजा आता है, राइट। वो घंटी बजाएंगे, तो इससे माला जपेंगे। आई नो अ मैन, ही डेली ही इज डूइंग द गॉडेस वर्शिप फॉर 2 आवर्स। उनके घर में फोन करो तो सब उनके मंत्रों की चिल्लाने की आवाज आती है, चिल्ला चिल्ला के मंत्रा करते हैं। जस्ट एज आई वाज टेलिंग शायद इन द लास्ट क्लास वेयर आई वाज टेलिंग कि आप इंसान के एक्शन से समझ सकते हो उसके अंदर क्या चल रहा है, राइट। सो व्हेन यू आर डूइंग द पूजा विद चिल्लाऊ चिल्लाऊ करके, तो यू आर एमिसिव, यू आर यूजिंग योर मस्कुलिन पोलैरिटी, राइट। सो व्हाई आई एम सेइंग इट कि जब आप ध्यान कर रही हो, जब आप पूजा भी कर रही हो, आप उसमें रिसेप्टिव हो रही हो, लेकिन जब यज्ञ करने की बात आ रही है,
जब मंत्रा चैंटिंग की बात आ रही है, वो भी पूरा जिस दिन तुमको फर्क ही नहीं लगेगा, राइट? सो द सेम polarity will shift and balance within you also. So you should see in each aspect of your life that way, and that is that is something which will take you towards the balance in life, right? Unless these two phases are properly united and harmonized, spiritual procreation, where from where I started, permanent peace नहीं आएगा जब तक हम ये harmonize नहीं कर रहे हैं. Spiritual procreation requires the proper mating within oneself of the sterner masculine qualities with the softer feminine nature. It results in and manifests in the birth and expression of true knowledge and total self contentment. तो वो समय आएगा जब आप complete संतोष में होंगे. संतोष इज अ फेमिनाइन क्वालिटी, और आपके पास सारी नॉलेज भी होगी. तो जितने मोस्टली गुरु लोग होते हैं जो सच में सेल्फ रियलाइज पीपल है, दे आर टेंडर ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम इफ दे वांट टू पनिश दे विल पनिश ऑल्सो, राइट? In one who has attained self-realization, this perfect union has been achieved. In the ordinary man, the imbalance makes him dissatisfied and restless. तो जब हम हमारे अंदर ये बैलेंस नहीं होता तो हम क्या होते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि इम्बैलेंस हमारे अंदर चल रहा है. आप इसको कैसे भी देखो, आप अपनी इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, किसकी कौन सी ज्यादा चलती है, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि मेरा मस्कुलिन, इसकी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती होती है, वो ज्यादा एमिसिव होते हैं. जिनकी चंद्र नाड़ी ऑफन ज्यादा देर तक चलती है, वो लोग बहुत वो होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, ज्यादा ही फेमिनाइन हो जाते हैं. तो इसलिए तो हम प्राणायाम क्यों करते हैं? बिकॉज इन प्राणायाम, इन द मोस्टली इन दिस अनुलोम विलोम, we are trying to balance both the pranas, right? Both our polarities. The attraction between man and woman, when based on true love and not sensual obsession, is the effort of the soul to regain its normal harmony. This gives birth to the oft abused argument proclaiming the necessity to seek and find one's soulmate. तो हम लोग क्या करते हैं, हमको सोलमेट चाहिए, और हमारे बॉलीवुड ने क्या बनाया, मैं ये पढ़ किया तो मुझे यही याद आया. अपने बॉलीवुड में क्या होता है, प्यार का मतलब सबसे पहले किस एंड देन यू गो टू द बेडरूम. अब बॉलीवुड में यही दिखाया जाता है, राइट? और गुरु जी क्या कह रहे हैं कि ट्रू लव जो है, इट इज when based on true love, the relationship of the man and the woman, and not on the sensual obsession, is the effort of the soul to regain its normal harmony. तो हमारे यहाँ उल्टा हो गया. हमारे यहाँ क्या होता है, या पूरे जगत में हम क्या सोचते हैं, सोलमेट कौन है? सोलमेट वो है कि बस कहने के लिए हमारा आत्मा का कनेक्शन है, बट हाउ डू वी वांट टू कल्मिनेट दिस सेंस दैट दिस पर्सन इज माय सोलमेट बाय बीइंग इन बेड विद दैट पर्सन, राइट? दिस इज व्हाट पीपल आर क्रेजी अबाउट ना. उनका राहु इतना ट्रिगर्ड है, राहु एंड वीनस. तो उनको यही लगता है कि दैट इज व्हाई आई हैव सीन पीपल, आप लोग ने भी बहुत देखा होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं? बिकॉज seemingly the person says that though I am married, but the person whom I am in love with, that is my soulmate, right? और उस soulmate के साथ करना क्या है, मेरी married में जो मुझे नहीं मिल रहा है, I have to be in bed with this person, she or he makes me feel complete. This is what people say, right? So what we have done, we have connected the sensual aspect plus love, and then we say is equal to true love. So we have to erase this definition from ourselves. The true love is not at all based on the sensual love. That is a byproduct, but it is not the only thing in the true love. Okay. But all too frequently, attraction for the wrong reasons resulted instead in cellmates. फिर वो जेल जाते हैं. अच्छा, मैंने टैरो कार्ड रीडिंग करना भी इसलिए बंद किया. मैंने टैरो कार्ड रीडिंग करना इसलिए शुरू किया था, आई नेवर थॉट कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, ठीक है? बट मेरी एक सिस्टर है, उसने मुझे दिखाया कि देखो टैरो कार्ड में लोग क्या क्या बोलते हैं कि आपका सोलमेट कहाँ है, आपका सोलमेट कब वापस आएगा. आई वाज लाइक, मैन, लोग टैरो कार्ड को कितने अब्यूज कर रहे हैं, राइट? कितना गलत गलत बोलते हैं लोगों को, कितना गलत गलत सिखाया. तो मेरा पर्पस ये था कि मैं टैरो कार्ड से स्पिरिचुअलिटी सिखाऊं लोगों को, ठीक है? तो मैंने वो करना शुरू किया. लेकिन फाइनली दी energy of people towards tarot is like that when they have a consultation with you, वो आपसे यही पूछेंगे, मैम वो मेरा सोलमेट है कि नहीं, राइट? दे विल आस्क यू, मैम मुझे मेरा सोलमेट कब मिलेगा? तो देन आई वाज लाइक, यार नहीं होगा, जितना देना था दे दिया, जिसको समझ में आ गया आ गया. बिकॉज लोगों ने जो परसेप्शन है टुवर्ड्स सोलमेट, टुवर्ड्स लव, वो ही चेंज कर दिया. पूरी जनता ने, पूरी सोसाइटी ने वही चेंज कर रखा है, राइट? और हमारा इंडिया इतना ब्लेस्ड है कि हमारे यहाँ तो जो एपिटोम ऑफ लव है वो राधा और कृष्णा है. दे आर नॉट इवन मैरिड, राइट? है ना? तो वी शुड अंडरस्टैंड लव दैट वे. Karmic patterns created by a person's past action, mental and physical, determine the birth of that person's soul
in either a male or a female body. तो गुरुजी बोल रहे हैं कि हम किसी मेल बॉडी या फीमेल बॉडी में ही क्यों आते हैं, क्योंकि जैसे हमारे कार्मिक पैटर्न्स होंगे, पास्ट लाइफ कर्मा होंगे, उसके अनुसार चूज होता है. The sexless soul has experienced both forms throughout its many incarnations. One good reason to respect the equality and virtues of both these expressions of God. So, marriage between man and woman is for the purpose of each partner helping to uplift the other in a commitment of divine friendship, love, and loyalty that will move both souls closer to their true nature in the incarnation they share. So, according to Gurudev, मैरिज का मतलब क्या है? मैरिज वही सफल है या मैरिज वही है एक्चुअल में जहाँ पे दोनों हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं, एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं. तो मान लो एक अगर स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है तो दूसरे के लिए प्रे करे that one day this person also walks on the same path or on the spiritual path. That is the true meaning of marriage. And it further provides the medium and right environment to invite other souls seeking rebirth on earth to come into the circle of their expanding love. तो जब ऐसे लाइफ पार्टनर होंगे जो दोनों एक दूसरे का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में हेल्प करते हैं, तो जब वो एक संतति भी आती है जब उनकी, तो वो संतति अच्छे संस्कार लेके आती है कि वो भी अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करती है. Whether one seeks soul harmony through right marriage or a celibate life, the culmination will be finally achieved by union with God. That is, the reunion of a man or a woman, both of which are products of nature, the negative or the feminine aspect, and with the positive force, the one true beloved of all love-lorn souls spirit. So चाहे हम शादी में हो, चाहे हम सेलिब्रेट हो, अल्टीमेट एम हमारा है ये फाइंड आउट करना, ये रियलाइज करना दैट वी आर द मस्कुलिन एंड द फेमिनिन एंड द एब्सोल्यूट. फाइनली we are the absolute. Many psychological skirmishes occur before King Soul reigns supreme or before King Ego gains total control of the bodily kingdom. No matter how many times in one life or in many incarnations, King Ego appears to be in complete domination of the bodily kingdom, he cannot rule for eternity. But if King Soul once gets firm control of man's kingdom, he rules forever. तो ये कितनी अच्छी बात है. गुरुजी बोल रहे हैं कि चाहे इस जन्म में बहुत सारे अटेम्प्ट हो या बहुत सारी लाइफ्स के अटेम्प्ट हो, जो अहंकार है या अज्ञानता है वो हमेशा हमें रूल नहीं कर सकती. कोई तो ऐसा जन्म आएगा जहाँ पे जो किंग सोल है, जो आत्मा है, वो हमारे बॉडीली किंगडम को रूल करेगी. और एक बार जब हम उसके रूल में आ गए, इट इज ओनली जस्ट वंस वी नीड द किंग सोल टू गवर्न अस, उसके बाद इट विल रूल फॉर एवर. राइट. तो जो गुरु लोग होते हैं वो भी तो उनके तो जन्मों जन्मांतर से वो एक ही पाथ पे चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, किंग ईगो को हराते आ रहे हैं धीरे धीरे करते करते करते. फिर इस जन्म में जब वो गुरु बने, क्योंकि जो किंग सोल थी that has become the complete king, the king ego is completely skirmished. This is owing to the blessed truth that sin and ignorance are only temporary wheels of the soul. Wisdom and bliss are its essential nature. Although a man may be a sinner for a time, it is impossible for him to be a sinner forever or to suffer everlasting perdition. तो ये हम लोग के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है. कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने, अगर हमने इस जन्म में कुछ गलत किया है कि मैंने क्यों कर दिया गलत, या फिर अगर हमको लगता है मेरे पूर्व जन्म के कुछ गलत कर्म रहे होंगे जिसके कारण मैं ये झेल रही हूँ या ये प्रॉब्लम है, तो ये गुरु के माउथ से आ रहा है. राइट. गुरु क्या बोल रहे हैं कि कोई भी हमेशा सिनर नहीं रह सकता है. कोई हमेशा ऐसा नहीं हो सकते कि कोई सिर्फ हर लाइफ टाइम में सिर्फ सफर ही करे. देयर विल कम अ टाइम इफ यू कीप मेकिंग द एफर्ट यू विल कम आउट ऑफ इट. तो इससे हमको, बिकॉज समटाइम्स वी गो इनटू अ गिल्ट कॉन्शियसनेस, so we should always tell ourselves that no matter what, whatever wrongs I would have done in this life or in the previous life, so God and gurus, they always love me. Sitting up there or around us, they are not judging us. The only thing that they are doing each moment is to push us towards our own self, our higher self. They are not judging us for the flaws that we have.
Made as man is in the image of God, he may seemingly deface that image through the human misuse of free choice. But the suit of ignorance cannot destroy the immortal stamp of God in man. इसलिए हरे गुरु बोलते हैं कि याद रखो तुम भगवान का अंश हो, चाहे कुछ भी हो जाए. And just try to remove all the layers from yourself one day when you realize that you are God. Because the divine image in man can never be fully hidden, even the darkest kingdom has some illuminating rays of virtue. By introspecting on the infallible criteria suggested by the comparison of two analogous illustrations under discussion, the devotee should analyze his daily mental and physical actions to determine just how much of his life is ruled by ego's ignorance and body consciousness, and how much he is able to express the soul's wisdom and true nature, divine nature. तो जैसे गुरुजी ने ये बोला ना यहाँ पे कि इवन द डार्केस्ट किंगडम हैव सम इल्यूमिनेटिंग रेज ऑफ वर्च्यू. आप लोग ने वो देखा होगा ना, चाइनीज वो होता है एक सिंबल है यिन और yang का, है ना. एक व्हाइट है और एक ब्लैक है. व्हाइट में ब्लैक डॉट है, ब्लैक में व्हाइट डॉट है. तो यहाँ पे गुरुजी यही कह रहे हैं कि इवन जो लाइट है उसे भी, उसमें भी चांस है टू गो टुवर्ड्स डार्कनेस. और जो एक कंप्लीटली डार्क है वहां पे भी चांस है, देयर इज अ पॉइंट ऑफ लाइट विच यू कैन होल्ड ऑन टू एंड यू बिकम कैन बिकम द लाइट, इधर वेज, राइट. सो दैट इज वाई वो क्या, अब वो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं इस फर्स्ट वर्स पे कि दैट इज वाई डेली वी हैव टू कीप ऑन इंट्रोस्पेक्टिंग आवरसेल्व्स. और मैं तो ये बोलती हूँ धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी. थ्रू आउट इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू सिट इन द नाइट एंड देन इंट्रोस्पेक्ट. Each moment, whatever action you are doing, right, you can introspect yourself, if am I right or not, and then and there correct it. Okay, habit versus discriminative free choice. Whether an action is in tune with the discriminating soul or with the deluded ego depends on the decision a man makes consciously or unconsciously when that action is initiated. तो हम आपको जो बार बार यही बता रहे हैं कि दूसरों को कैसे देखना है, समझना है, जज नहीं करना, समझना है. खुद को भी कैसे समझना है कि मैं क्या डिसीजंस लेती हूँ. अगर मेरे डिसीजंस इम्पल्सिव है, they are always based upon first me, what I'm going to get, or what my people are going to get. So if anything which I'm doing is driven towards me, my satiation, then I am driven by mind, by the ego. But whenever I'm doing any action where I'm thinking about the other person also, or if I can think, can that this life of mine, can it be of some benefit to someone? So when I am thinking that way, at that time I am driven by the soul, by the Guru's Gyan. Always remember, friends, anytime whatever thought, whatever action is only centered around you or your loved ones, you are shrinking your consciousness, right? Every time you are involving more people in whatever you do or whatever you think of, then you are expanding your एनर्जी. जैसे मैंने एक बार एग्जांपल बताया था कि भाई, हाँ लता को बताया था मैंने कि आप ये बोल सकते हो कि भगवान मुझे घर दो, है ना, इतने इतने कमरे हो, बड़ी गाड़ी दो. तो आप जब करोगे प्रे 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 तो वो हो जाएगा. लेकिन आप ऐसे में तो बोल सकते हो कि भगवान मुझे इतनी अबेंडेंस दो कि मेरे पास घर हो और उस घर में मैं आश्रम बना सकूं, राइट. या मुझे कोई ऐसा फार्म हाउस दो कि मैं वहां पे रहूं भी और मैं और लोग को पढ़ा सकूं, या मैं अपने गुरुदेव का आश्रम बना सकूं. ये भी तो सोच सकते हैं हम. सोच है सिर्फ. और अच्छा लता है यहाँ पे, हैप्पी टू सी यू लता. आई थॉट यू आर नॉट हियर टुडे. तुम्हारा जॉब कब स्टार्ट हो रहा है लता? अच्छा, ओके. लता क्योंकि फिर से जॉब ज्वाइन कर लिया है तो उसने मुझे बताया था कि वो नहीं आएगी. बट आई एम हैप्पी यू आर हियर लता, वेरी गुड. ठीक है. तो फ्रेंड्स आपकी सोच ही तो है. उस सोच में आपको भी सब कुछ मिल रहा है लेकिन आप एक प्रोवाइडर बन रहे हो. एंड हु इज द प्रोवाइडर? हु, कौन दे रहा है हमें सब कुछ? ईश्वर दे रहा है ना. तो हम ईश्वर के वो बन रहे हैं, चैनल. जब हम ये सोचते हैं कि मुझे इतना एक्सपेंसिव बनाओ, मुझे ऐसा कुछ दो कि मैं दूसरों के साथ शेयर करूं.
लेकिन जब हम सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं, हम श्रिंक हो रहे हैं, तो हमें ईश्वर उतना ही देते हैं। मेरा प्याला कितना बड़ा है। आप म्यूट हो गए हो प्रियंका। हम्म। अब भी आ रही है मेरी आवाज? आई ऑडिबल? ठीक है। सो आई एम हैप्पी लता, मुझे लता जैसे लोग अच्छे लगते हैं। वेरी गुड लता, वो ऑफिस में रह के भी सुन रही है। तो हमारी एफर्ट वेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्यों बता रही थी, ये भी सेल्फ रिफ्लेक्शन का पार्ट है। और जितना हम श्रिंक होते हैं ना, उतना हम डिप्रेशन में जाते हैं। आप देख लो, जो लोग इन चीजों के पीछे लड़ते रहते हैं, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ज्वेलरी, मेरा बैंक अकाउंट, मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं कि नहीं? उनके घर में क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर। इट इज सो सिंपल। धरती किसकी है? धरती माँ सबकी है यार। जितने ये 60-70 साल का जन्म है, उसमें जी लो, और जो फिर जिसको जो यूज करना है करने दो ना। वी आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ, दैट इज व्हाई वी आर सफरिंग। ओके। Actions of each human being are determined in several ways. A man may be guided by free choice or by the influence of prenatal karmic tendencies, that is, the habits and effects of actions carried over from past lives, or by the suggestions of postnatal habits or by environmental vibrations. तो हमारे पूर्व के कर्म, हमें जो जन्म के बाद जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा, और जो हमारा एनवायरमेंट है, वो हमारी पर्सनैलिटी, हमारा थॉट प्रोसेस बना सकता है। Thank you, Lata. It's a blessing to have you in the life also. The great paradoxes and the anomalies of life observed as deep contrast between rich। अब देखो कितना अच्छा बताया है कि गुरुजी कह रहे कि ऐसा क्यों होता है कि कोई अमीर होता है, बहुत अमीर है, लेकिन अनहेल्दी है। कोई, और आपने देखा होगा जो मजदूर लोग होते हैं बेचारे, इतने गरीब होते हैं, लेकिन वो हेल्दी है। Some are living a long life, some are dying at an early age, some who succeed at everything, some who fail repeatedly, persons who are naturally peaceful and those who are chronically choleric, मतलब fearful, all are the results of their own prenatal and postnatal actions. So friends, ये हम बहुत तरीके से समझ सकते हैं कि that this is what helps us in bringing the acceptance of life as it is and the people as they are. राइट। जैसे गुरुजी ने बोला, कोई रिच है लेकिन अनहेल्दी है, कोई गरीब है तो हेल्दी है, कोई बहुत पीसफुल है, कोई फियर में ही रहता है। जब हम ये अपने अंदर गांठ बांध लेते हैं दैट एवरी पर्सन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हिज पास्ट लाइफ कर्मास, हम ये माने या ना माने, सच तो यही है। तो फिर हम हमको उसको, जैसे इनर चाइल्ड का कंसेप्ट मैं बहुत मानती हूँ। मैं तो यही सोचती हूँ हमेशा कि भाई इसके अंदर इनर चाइल्ड है यार, जो अनहील्ड है। राइट। सो व्हाई शैल वी कीप ऑन क्वेश्चनिंग अदर पर्सन और जजिंग समबडी? वो अपने पास्ट लाइफ इंस्टिंक्ट से चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु को धारण नहीं किया। हम तो कोशिश ये करते हैं ना कि हम अपने पास्ट लाइफ इंस्टिंक्ट से ना चल के गुरु के ज्ञान से चले। उन लोग ने नहीं किया तो वो उसी से चल रहे, तो हमारे ये एक्सेप्टेंस आ जाती है लोगों के लिए। A wicked man, an artist, a businessman, a dogmatist, an intellectual, a talkative, do nothing, a man of self-realization, all are self-made. Such a beautiful thing. सब self-made है। चाहे वो कोई crooked इंसान है, चाहे वो artist है, चाहे वो self-realized है। Very few human beings, however, use exclusively their God-given power of free choice in making themselves the person they want to be. तो हमारे पास फ्री चॉइस तो है, तो जिसको हम एक्चुअली में फ्री चॉइस समझते हैं,
वो एक्चुअली में हमारा बंधन है, और जिसको हम बंधन समझते हैं एक्चुअली वो हमारी फ्री चॉइस है। समझ रहे हो? जिसको आजकल जिसको हम सोचते हैं कि आई कैन डू एनीथिंग, मैं कोई भी कपड़े पहनूं, मैं किसी से भी रिलेशनशिप बनाऊं, उसको हम फ्री चॉइस समझ रहे हैं। बट वो एक्चुअली में क्या है? इट इज गोइंग टू गिव पनिशमेंट टू अस। बट हमारी एक्चुअल फ्री चॉइस भगवान ने क्या दी है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा कैसा भी पास्ट लाइफ कर्मा रहा हो, तुमने कुछ भी किया हो, मैं तुम्हें सिनर नहीं मान रहा हूँ। तुम जब चाहो तुम मेरी ओर आ सकते हो, चाहे मंत्र जाप करो, चाहे नाम जप करो, चाहे गुरु धारण करो। वो फ्री चॉइस है ना हमारे पास। लेकिन हम उस फ्री चॉइस को हम क्या समझते हैं कि भाई गुरु धारण करना तो बंधन है, मंत्र जाप करना तो बंधन है, तो इट इज उल्टा, ये माया है। The majority allow their characteristics to change passively and desultorily in various undirected ways according to the patterns of passing moods engendered by specific environments, or according to the helpful or sinister influences of prenatal and postnatal habits. तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो पुराने संस्कार हैं, टाइम टू टाइम जैसे दशाएं बदल रही है, उम्र बदल रही है, हमारे पुराने इंस्टिंक्ट्स उठते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम अलाउ करते हैं अपने आप को उनसे ड्रिवन करने में, और हम अपनी पर्सनालिटी को अपने ही बनाए हुए प्रोग्राम्स में मोल्ड करते रहते हैं, completely bypassing the program of God which is always available for us. And why do we do that? Because of our prenatal and the postnatal tendencies, and also because of our environment. Prenatal habits establish themselves in the trenches of the subconscious mind and try to influence the discriminative power of the conscious mind. तो हम लोग ने सबने देखा है, सबके डिसीजन मेकिंग, सबकी एक्शन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपका इनर प्रोग्राम आपकी पास्ट लाइफ से ड्रिवन है। आप पास्ट लाइफ में जैसा करते आए हो, आप उन संस्कार के अलावा उन संस्कार से आप चल चल के आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्शन करते हो। दैट इज वाई फॉर एवरीबडी दैट इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो घर का बंटवारा हो रहा है, तो एक बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हो? एक बोलता है कि हाँ मुझे तो चाहिए, दूसरा बोलता है कि हाँ मैं तो केस करूंगा। तो सिचुएशन तो एक ही है, लेकिन सबका वो अलग है। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो पूर्व के संस्कार है वो आपको ड्राइव कर रहे हैं उस वक्त। I believe that any man may become an ideal person if his prenatal habits, under the guise of heredity, are not permitted to influence his divine power of free choice. So beautiful. हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर जो प्रीनेटल हैबिट होती है उसको हम हेरिडिटी बोल देते हैं कि भाई इसके पापा भी गुस्सा करते थे तो ये भी गुस्सा करते हैं। इनके हमारे घर में तो हमेशा से नॉनवेज खाया जाता है, तो हमारे यहाँ तो सारी जनरेशन नॉनवेज खाती है। व्हाट वी डू, हम अपनी प्री नेटल हैबिट्स को हम अपनी हेरिडिटी बोल देते हैं, और हम उसको स्वीकार भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता है भाई ठाकुर लोग हैं तो गुस्सा ही करेंगे। कुछ पता नहीं कौन सी एक होती है कि हमारे यहाँ तो शादी में एक गोली तो चलती चलती है, राइट। और सबसे बड़ा क्या होता है, हम ये बोल देते हैं कि भाई मेरे घर में तो सबको डायबिटीज होती ही होती है, तो मुझे तो होगी होगी, बोलते हैं ना। कुछ बीमारियां हम बोलते हैं ना कि हमारे घर में, क्यों? क्योंकि आपने उसको हेरिडिटरी मान लिया। तो आप क्या करोगे, आप उसको चेंज करने की कोशिश ही नहीं करोगे, जबकि वो एक करप्टेड प्रोग्राम ही तो है। देर इज अ सर्टेन थॉट पैटर्न, there is a certain way of living that the whole family has been following blindly. If you stop that, if you change that thought pattern, then for sure, I will not say maybe 100% no, but to a certain extent you can stop that in your life, because you are choosing not to be with that same kind of thought process, right? अब जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, तो डायबिटीज का आप उस पे जाओ कि उसका इनर मीनिंग क्या है, व्हाट इज द सिंबोलिज्म। अ पर्सन हु ऑलवेज फाइंड्स दी, क्या बोलते हैं कड़वा को इंग्लिश में, बिटर, जिसको सारे लाइफ के एक्सपीरियंस बिटर ही लगते हैं। परसेप्शन, राइट, कि मैंने सबके लिए ये सब कुछ किया लेकिन मेरे को तो कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है।
हर रिश्ते में कड़वाहट का अनुभव जिसको हो रहा है, उसको बाय डिफॉल्ट उसको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर हमने ये पैटर्न समझ लिया कि दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर द डायबिटीज, एंड यस आई हैव सीन माय मदर being into that kind of emotional state, or my father into that kind of emotional state, can I not choose to be into another emotional state which is much more balanced and free? If I do that, I am actually helping my generations. आपको तो पता है ना कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, वी आर एक्चुअली चेंजिंग द डीएनए ऑफ द कमिंग जनरेशंस। हमारा जो पितृ दोष है सब कुछ खत्म हो जाता है जब हम गुरु उस पे चलते हैं, क्योंकि हम वो मैट्रिक्स को चेंज कर रहे हैं। हम उस मैट्रिक्स उस पूरे परिवार के मैट्रिक्स को ही चेंज कर रहे हैं। राइट, तो हेरिडिटी नहीं मान लेना चाहिए। तो गुरुजी ने इसलिए यहाँ पे बोला। तो जब हेरिडिटी मान लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम हेरिडिटी नहीं मानेंगे तो वी कैन बिकम एन आइडियल पर्सन, एंड हु विल बी ड्रिवन बाय द डिवाइन पावर ऑफ फ्री चॉइस। राइट, दैट इज वाई आप देखो, ये आप सबने देखा होगा, हर एक फैमिली का एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग होता है। राइट, और हम उसी में चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम वो ही मानते रहते हैं। वो चेंज, अगर उसमें जो अच्छा है उसको रखो, लेकिन उसमें अगर कुछ अच्छा नहीं है तो हमको उसको बदलना चाहिए जरूर। जब तक हम बदलेंगे नहीं तो वही काइंड ऑफ परिस्थितियां हर जनरेशन में आती रहती है। एवरी पर्सन शुड बी एबल टू एक्ट फ्रीली, guided only by the highest wisdom, uninfluenced by any undesirable prenatal habit. So हमको ये मार्क कर लेना चाहिए गुरुजी के अनुसार फ्री एक्ट करने का मतलब क्या है? When I am guided only by highest wisdom. So anytime whenever I am guided by highest wisdom and I am doing the action based on that, at that time actually I am free. I am not free when I am howling on the people in front of me, I am getting angry on them. That is not my freedom. At that time actually I am bound by my karma, right? My sanskara. I am bound. I cannot stop myself from being angry. I cannot stop myself from being fearful. And though I'm living in a fear, so I am not free. I am free only when I am abiding by the highest laws given to me by my guru or God. And then what will happen? I will be uninfluenced by any undesirable prenatal habit when I start doing that. The influence of prenatal good habits is not harmful, of course, but it is best to perform good actions chiefly through the inspiration of the present free choice of the soul. Similarly, one should not allow his good judgment to be enslaved by bad habits acquired in this life. Most people do not know the consequences of acting under the influence of bad habits until they suffer excruciating bodily pain or undergo heartbreaking sorrow. तो गुरुजी क्या कह रहे हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि बैड हैबिट से क्या होता है, क्योंकि हम बाय विजडम तो हम नहीं समझना चाह रहे। तो उन लोग के साथ क्या होता है, वो बैड हैबिट से चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, फिर जब उसका बहुत सारा प्रोग्राम इकट्ठा हो जाता है तो उसको उससे तकलीफें आने लगती है या कोई दुख आता है। तो जब वो दुख आता है तब भी ईश्वर हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी ये बैड हैबिट, चाहे मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, इसको बदलो। दिस इज द टाइम पीपल ट्राई टू लर्न। It is pain and sorrow that impel men all too late to inquire into the cause of his present condition. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब ने ये देखा होगा, मोस्टली लोग स्पिरिचुअल पाथ पे तभी चलते हैं जब उनके जीवन में पेन या सॉरो आता है, क्योंकि उससे पहले हम लोग अपने प्री नेटल पोस्ट नेटल जो कार्मिक पैटर्न्स हैं हम उससे ही चलते रहते हैं। Very seldom does man realize that his health, success, and wisdom depend in great part on the issue of the battle between his good and bad habits. He who would establish within himself the rule of the soul must not allow the bodily kingdom to be occupied by bad habits. All such evils must be banished by training
diverse good habits in the art of victorious psychological warfare. तो गुरुजी कह रहे हैं कि हेल्थ हो, सक्सेस हो, विजडम हो, कुछ भी हो, इट इज ऑल अबाउट द बैटल बिटवीन द गुड एंड द बैड हैबिट्स. सो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट. The soldier of bad habits, ill health, and negativeness become invigorated by any actual performance by man of a bad action, whereas the soldiers of good habits are happily stimulated by any performance of a good action. Bad habits must not therefore be fed with bad actions. तो गुरुजी कह रहे हैं कि भाई अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, तो अगर आप वही हैबिट बार बार कर रहे हो, तो यू आर फीडिंग दैट हैबिट. अगर आपको कोई अच्छी आदत बनानी है, तो आप कॉन्शियसली जानबूझ के बार बार वो अच्छी आदत बनाओ, चाहे एक थॉट प्रोसेस है या एक फिजिकल एक्शन है. तो बैड हैबिट को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हम बैड एक्शन कर रहे हैं या बैड थॉट सोच रहे हैं, वी हैव टू कर्ब इट instantaneously. Whenever we are doing it, then only it will go away. Bad habits must not therefore be fed with bad actions. They should be starved out by. आप कैसे खत्म करेंगे बैड हैबिट्स? तो बैड हैबिट्स आप प्लीज याद रखना, इट इज नॉट ओनली फिजिकल, इट कैन बी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. On any level you can have a bad habit. So he's saying starve it out by self control and good habits strengthened with the nourishing food of good actions. तो ऐसे बोलते हैं ना कि जब कोई अच्छा ख्याल आए मन में तो सोचना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए, है ना. और जब गुस्सा आए तो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए. तो दिस इज व्हाई दे आर सेइंग इट. जब जो गुड एक्शन करना है उसको फीड करते रहो, और बैड एक्शन या बैड हैबिट, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली क्या प्रॉब्लम है, कोई फियरफुल थॉट आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है ना. तो क्या करोगे, अपना एक प्रोग्राम बना लो कि जब भी मुझे ये थॉट आएगा, मैं नाम जप करने रहूंगी, मैं जिसका भी जो नाम जप करती हूँ भगवान का, आई विल रादर फोकस ऑन गॉड. सो व्हाट विल हैपन, धीरे 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 जो हमारा वो एक पैटर्न बना हुआ है रॉन्ग चीजें सोच, एंजाइटी इसलिए तो आती है. एंजाइटी का मतलब क्या है? There are certain fearful thought patterns which are continuously going on within me and they have become a part of my subconscious. When we become aware that I am having this bad thought, फ्यूचर को लेके, किसी को लेके, अपने को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, तो उसी वक्त क्या करो, नो, आई एम सरेंडरिंग इट दिस थॉट टू गॉड एंड आई विल थिंक ऑफ गॉड, हरे कृष्णा या हरे राम, जो भी बोलना है, हम अपना एक मंत्र पकड़ लो, वो जान करना शुरू कर दो. This is how we are becoming self-controlled and we are starving that bad habit of ours. Okay. No action, inner or outer, is possible without the energizing power of will. Willpower is that which changes thought into energy. Man is endowed with free will and should not abdicate his freedom of choice and action. To ensure right action, the challenge of the seeker after self-realization is to overcome prenatal and postnatal bad habits with good habits and to increase actions that are initiated solely by wisdom-guided free choice, emancipated from all karmic, habitual and environmental influences. तो गुरुजी कह रहे हैं कि कोई भी एक्शन है, इनर एक्शन है या आउटर एक्शन है, वो ड्रिवन कब होगा, उसकी पावर कहाँ से आएगी, विल से आएगी. वो क्या कहते हैं, विल, विल क्या है? विल पावर इज दैट दैट चेंजेस थॉट इनटू एनर्जी, राइट. अब आपका जो एक फियरफुल थॉट है वो आपकी एंजाइटी बन रहा है, राइट, आपका नर्वस सिस्टम खराब कर रहा है. या आपके जो एंगर है, वो आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ एंड देन यू आर शाउटिंग और डूइंग समथिंग. So if you had strong willpower, you could stop that. Through the strong willpower, you can stop the thought, wrong thought. Through the strong willpower, you can stop doing yourself from doing the wrong action. So willpower is that energy, which will willpower is that which makes a thought into energy. ये याद रखना है, बहुत अच्छा बताया गुरुजी ने हमको. तो हमको फ्री विल मिली है, तो फ्री विल जो है, ही सेड कि शुड नॉट एब्डिकेट हिज फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्शन. तो हमारे पास हर क्षण में चॉइस का और एक्शन का फ्री विल है.
सो आज हमको ये गांठ मार लेना चाहिए कि वी आर नॉट बाउंड। हमारा थॉट है जो हमें बोलता है कि हम बाउंड हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हमारे पास विल है ऑफ चॉइस एंड एक्शन, राइट। टू एंश्योर राइट एक्शन, द चैलेंज टू द सीकर आफ्टर सेल्फ। तो हमारे लिए राइट एक्शन होगा, विल पावर कहाँ पे यूज होगी? जब गुरुजी कहे जब कोई सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है, तो हमको अपनी प्री नेटल और पोस्ट नेटल बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स से चेंज करना है। और कौन से एक्शंस इंक्रीज करने हैं हमको? दैट आर इनिशिएटेड सोली बाय विजडम गाइडेड फ्री चॉइस, emancipated from all karmic, habitual, and environmental influences. So we should always remember that the free choice is wisdom guided, and all the other choices which we think are the free choices are actually driven by the karmic, habitual, and the environmental influences. तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, आप कुछ सोचते हैं, हम बोलते हैं ना ऐसा तो होता ही है, ये तो करना ही पड़ता है, ये तो करना ही होगा, forever whatever we think of, ask yourself, it is the wisdom, is it the wisdom guided thought, or it is because of my sanskar, my family sanskar, or the environmental influence that I am doing this. ठीक है, जैसे आजकल के बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि 14 साल के हो गए हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। बच्चों को इस बात वो करते हैं पेस्टर उनके पियर्स, राइट। तो अगर उस उन बच्चों को सही ज्ञान दिया जाए, if they are driven by wisdom, they will not be getting affected by these kind of stupid things. But since they don't have the value system, so what do? They are influenced by these stupid thoughts that I don't have a girlfriend or a boyfriend, then I am not good. If I'm not wearing the clothes as the way my friends are wearing, then I'm behenji or I am orthodox or whatever. Right? So though they feel, that is why they are becoming rebellious. Though they feel that I am using my free choice, I can wear whatever I feel like, I can have relationship with whomsoever I want to be, but they are actually driven by their wrong sanskar. Right? So if they had the right value, then they would have been actually be free to choose what is right for me. Today, what we choose, we think it is right for me, but it is all detrimental. Any choice which is not taking me towards peace is not the right choice. Always. It is a universal truth. Right? Any choice which is detrimental, which is finally going to take me towards sadness, isolation, depression, it is better not to make that choice right in the present to save my future. Inextricably linked to the senses and habits is desire. The saints call this foe man's greatest enemy because it is desire that ties the soul to endless rounds of rebirths in the realm of delusion. हम सबको मालूम है ये, है ना? So another important battle the soul must win consists in rising above all personal desires, whether for money, mental power, physical health, possessions, name, fame, whatever binds the soul to matter and makes the consciousness forgetful of God. तो गुरुजी क्या कह रहे हैं? हमारा सबसे एक दूसरा बैटल क्या बता रहे हैं कि जो हमारे पर्सनल डिजायर्स है उनसे ऊपर उठना। अब हमारे पर्सनल डिजायर्स क्या हो सकते हैं? बेसिकली अगर हम कैटेगराइज करें, फॉर मनी, फॉर मेंटल पावर, फॉर फिजिकल हेल्थ, फॉर पोजेशंस, फॉर नेम, फॉर फेम। तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो भी इनमें से कुछ भी हमको जो बाइंड कर रहा है, जो सोल को बाइंड कर रहा है मैटर से, और हमको गॉड को फॉरगेट करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उस सब से हमको दूर जाना है, और ये हमारी पर्सनल बैटल है। तो हमको रोज पूछना चाहिए, व्हाट वाज आई डूइंग थ्रू आउट द डे? वाज आई ड्रिवन बाय द मटेरियलिस्टिक डिजायर टू हैव नेम, टू हैव फेम? नेम फेम इतना सटल भी हो सकता है कि मैंने कुछ किया और मैं बोलूं तुमने मेरी तारीफ नहीं करी, राइट? सो आई शुड आस्क, व्हाई डू आई सीक दैट? इट मींस आई एम स्टिल नॉट सेंटर्ड इन गॉड, राइट? Why? It's not bad, I will say, but for a sadhaka it is a बेड़ी। बेड़ी बोलते हैं ना, बेड़ी समझते हो ना क्या बोलते हैं उसको? मतलब आपकी हथकड़ी बन जाएगी वो, है ना, आपकी बेड़ियां बन जाती है वो।
इसलिए बोला है गुरुदेव ने, तो दैट इज वाई गीता हर एक व्यक्ति के लिए, बट एक साधक के लिए एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा ना फिर। डिजायरलेसनेस डज नॉट मीन एन एम्बिशनलेस एग्जिस्टेंस। अब गुरुजी कह रहे हैं कि अच्छा पहले हम यस, तो डिजायरलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई एम्बिशन नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। इट मीन्स टू वर्क फॉर द हाईएस्ट एंड नोबलेस्ट गोल्स विदाउट अटैचमेंट। तो हाईएस्ट और नोबलेस्ट गोल जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, कि क्या मैं सोसाइटी के लिए या कुछ भी अपने से परे जाके कुछ किसी के बारे में करने के लिए सोचती हूँ, तो वो ऐसा कोई गोल होना चाहिए हमारा। The desire to destroy poverty and ill health, for example, is a laudable one and to be encouraged. But after winning riches and health, one must still rise above all material conditions of the body to ultimately reach spirit. तो पैसा कमाना या अपनी हेल्थ ठीक करना अच्छा, वो है, ये मिशन होना चाहिए लाइफ में। बट जब ये हमारा मिशन हो जाए और फुलफिल हो जाए, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हो गया। हमको उससे भी ऊपर उठना है, अपने मटेरियल डिजायर्स को खत्म करना है। The modern trend is to use religion and God as baits for mere health, prosperity, and material happiness. One should seek God first, last, and all the time, not for his gifts, but as one's ultimate aim. तो ये तो हमेशा से ही चला आया है रिलीजन में। इनफैक्ट जब हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं, यही तो होता है ना, रेमेडी बता दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि हमको हर चीज से, कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरा पैसा बन जाए, मेरा बच्चा हो जाए। हम लोग तो, हमने क्या किया, हमने रिलीजन को मिसयूज किया। हमने सोचा कि पूजा करना इसलिए करना है क्योंकि जो गॉड के दो गिफ्ट है वो हमको मिले। तो गुरुजी कह रहे हैं हमको रिलीजन को इसलिए फॉलो नहीं करना है कि हमको गॉड्स के गिफ्ट चाहिए, हमको गॉड ही चाहिए सीधा, उससे बढ़ के कोई गिफ्ट नहीं है। Then he will find in the abundance of God's love all else for which he longs. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. तो जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हो, तो आपको जिस चीज की जरूरत होती है, आपको वो स्वतः ही मिल जाती है। जैसे कि आप किसी, मैं तो दो तीन लोग को मतलब जरा फोकस करती हूँ। जैसे मैं अगर अभी जो जीवंत जैसे लोग हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी थी 11 वर्ष की आयु में, ठीक है, उन्होंने जिंदगी भर तपस्या करी। उनको जब उनका किडनी भी फेलियर हो गया, तब भी वो वृंदावन में थे, वो रो रहे थे कि अब मैं क्या करूंगा, मैं भगवत प्राप्ति भी नहीं कर पाया और मैं कुछ महीने में मर जाऊंगा। ठीक है, बट उनको क्योंकि आए हैं वो यहाँ पे अपना प्ले करने के लिए, तो धीरे धीरे करके जब उन्होंने अपना नाम जब स्टार्ट किया, और उनकी किडनी जो है वो 20 साल हो गए, राइट। नाउ ही सेड कि भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों को किसी और ने पैदा किया, वो बच्चे आज मेरे पास है, मतलब जो उनके वो है सेवक, जो उनके शिष्य है। तो वो कहते हैं कि मुझे तो सब कुछ दे दिया भगवान ने, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, तो मेरे पास सब कुछ है आज। वो बच्चे मतलब कोई मुंह पहुंच रहा है, कोई पानी पिला रहा है, एवरीबडी इज टेकिंग सो मच ऑफ केयर ऑफ हिम एंड दे आर लविंग हिम सो मच, दे आर रिस्पेक्टिंग, सेवा कर रहे हैं उनकी। और जब वो अपने घर से निकले थे, वो तो निकल गए थे ना अकेले भगवान के विश्वास पे। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स, दैट व्हेन यू एक्चुअली लीव एवरीथिंग फॉर गॉड, और अपना वर्चस्व, अपना सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर देंगे हम जिस दिन, तो ही विल टेक केयर ऑन इट्स ओन। सेम वे परमहंस योगानंदा व्हेन ही वेंट, उस वक्त वो शिप से जाते थे, पानी का जहाज होता है ना आरती जी। तो पानी की जहाज से गुरुदेव गए थे, कुछ नहीं पता था उनको, इंग्लिश इंग्लिश कुछ नहीं आती थी गुरुदेव को। और वहां पे जाके कितने सेटबैक्स भी हुए उनको, उनके ऊपर। बट देन ही स्ट्राइव, एंड कितना बड़ा है योगदा सत्संग। इट्स अ वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन नाउ, एंड डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। एंड ही वेंट विदाउट एनीथिंग, जस्ट कि बाबा जी ने बोल दिया तो जाना। राइट, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये हमको सिखा रहे हैं। तो हम एक गृहस्थ होके एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत तो सरेंडर कर सकते हैं ना गॉड को। अपनी जो हमारे जो एंजाइटीज हैं, जो हमारे फियर है फ्यूचर के, हम वो तो सरेंडर कर सकते हैं, इतना बोल के कि भगवान आप ख्याल रखोगे, मेरा विश्वास है आपके ऊपर। जब हम विश्वास करेंगे, तो वो ख्याल भी रखेंगे। करेक्ट। तो ये डिफिकल्ट प्रोग्राम है, मैं बताऊं, जिन लोगों को के अंदर फियर होता है उनके लिए डिफिकल्ट प्रोग्राम है। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि ये परमानेंट प्रोग्राम है। आप रोज रो, आप रोज भगवान को बोलो
कि मुझे बहुत डर लगता है, जैसे काजल अगर कभी सुनेगी वीडियो, बिकॉज एंजाइटी का इशू बोल रही थी वो। तो अगर आपको लगता है मेरा ये इशू है, मैं यहाँ पे स्टक हूँ, मुझे नहीं हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट। बट आप अपना ये फियर, अपनी रिजिडिटी, रिजिडिटी कहाँ से आ रही है? क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे हमारे अंदर बहुत सारे फियर्स हो गए बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो फियर क्या करता है? हमको रिजिड बना देता है। तो हमको क्या करना है? हमको ईश्वर को ये भी बोलना है कि भगवान मेरे अंदर ये फियर है, उसके कारण ये रिजिडिटी आ रही है। आई एम होल्डिंग ऑन टू माई फियर्स एंड एंजाइटी, बट आई एम सरेंडरिंग दिस एनर्जी टू यू बिकॉज यू हैव क्रिएटेड इट। यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। राइट? तो हमको कुछ होल्ड ऑन करके नहीं रखना है। हमको अगर लगता है कि हमारे अंदर जेलिसी है, ग्रीड है, कुछ भी है, हमको समझ में आ रहा है, पहले तो मानना पड़ेगा ना कि मेरे अंदर है। मान के उनको सरेंडर कर दो, उसके बाद ही विल टेक केयर हाउ ही इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड, द गुरुज हेल्प। कितने साल लगेंगे ये नहीं कह सकते, है ना? बट वो हेल्प जरूर करते हैं, वो अपनी प्रेजेंस जरूर बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ एंड यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। As an awakened son of God, man may rightfully demand of his loving Father health, prosperity, or anything else needful. Before discovering God, people usually want the toys of material things. After finding Him, however, even the greatest material desires become insipid, not through indifference but through comparison with the all satisfying, all desire quenching God bliss. तो गुरुजी कह रहे हैं हम उनके बच्चे हैं ईश्वर के, हम जो चाहे हम उनसे मांग सकते हैं, मटेरियल डिजायर्स जो भी है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम ईश्वर को प्राप्त करने चलते हैं। गुरुजी हमेशा ये बोलते हैं हर राइटिंग में कि जिस दिन तुमने गॉड रियलाइज, गॉड को चख लिया, ईश्वर को चख लिया, उस दिन तुम जितनी भी चीजें मांग रहे हो वो उसके सामने कुछ भी नहीं लगेंगी तुमको। और फिर तुमको उसमें इतना आनंद आएगा, तो यू विल बी इंटॉक्सिकेटेड इनटू दैट गॉड रियलाइजेशन दैट यू विल नॉट वांट एनी अदर थिंग। जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, बॉडी से ही परे हो गए कॉन्शियसनेस वाइज। Many people unsuccessfully strive for a material goal all their lives, failing to realize that if they had put forth 1/10 of the concentration used in seeking worldly things into an effort to find God first, they could then have had fulfillments of not only some but all the heart's desire. तो जिसके पास बहुत अच्छी विल पावर है वो लोग मटेरियल डिजायर के पीछे भागते हैं। गुरुजी कहते हैं उसका एक एक 1/10 भी अगर कंसंट्रेशन से वो गॉड को फाइंड करने के लिए लगाए, विल पावर है, तो दे विल फाइंड गॉड। और उसके बाद एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। जिस चीज के लिए वो जो चाह रहे थे वो भी पूरा हो जाता है, ईश्वर भी मिल जाते हैं। सीकिंग गॉड होल हार्टेडली डज नॉट इम्प्लाई nor excuse neglect of the various physical and worldly battles of life. As a casket of even the most brilliant jewels cannot be seen in the dark, so the presence of God cannot be felt in the darkness of spiritual ignorance, mental inharmony, or overpowering disease. The spiritual aspirant therefore learns to conquer or to conquer in all battles in order to make the kingdom of life free from every cause of darkness, so that God's perfect presence therein may be perceived. तो गुरुजी कह रहे हैं कि भगवान को अब इसका उल्टा मतलब नहीं ले ले, क्योंकि लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअल लोग लेजी होते हैं। अपने यहाँ तो यही चलता है ना आजकल की, जो जो स्पिरिचुअल वही बनता है जिसको कुछ काम नहीं करना। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल बनने का मतलब ये नहीं है कि कुछ करना नहीं है। हर चीज के लिए स्ट्राइव करना है, अपने आप को हेल्दी फिजिकली मेंटली बनाने के लिए स्ट्राइव करना है, सब कुछ करना है, बट विद द गॉड कॉन्शियसनेस वी हैव टू डू। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर कोई जेवर से बड़ी भरी हुई भी कोई कास्केट है, तो अगर बहुत अच्छे अच्छे ज्वेल्स है जिसमें, तो उसको देखने के लिए भी रोशनी की जरूरत है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना रोशनी को लाने के लिए। तो गुरुजी कोई भी जो जो एक्चुअल में जो ट्रू स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, दे नेवर आस्क अस टू रिनाउंस द वर्ड। दे आस्क अस टू डू ऑल आवर ड्यूटीज बट विद द कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड।
जब हम कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड से नहीं कर रहे तो हम अपना कर्मा बना रहे हैं, क्योंकि हम राग द्वेष से चल रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से चल रहे हैं, तो हम कर्मा बना रहे हैं। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि सारे कर्म करो, बट गॉड रियलाइजेशन से करो, गॉड कॉन्शियसनेस में करो, तो अपने कर्म भी करते जाओगे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करते जाओगे। तो हेल्थ खराब हो गई या फिर मतलब क्या है, ये फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो हम ये कह के नहीं बैठ जाएंगे कि भगवान की इच्छा है। वी हैव टू स्ट्राइव टू improve दैट। Maintaining health in the bodily kingdom. Therefore, the next battle to be mentioned in one's duty to maintain the guardian forces of health in the bodily kingdom. Material success, mental efficiency, the practice of meditation for attaining self-realization. All are made easier if the body is not a hindrance because of debility or illness. तो गुरुजी कह रहे हैं हमारा ये भी हमारी ही ड्यूटी है, हमारी दूसरी बैटल है कि हमको अपने आप को फिजिकली फिट रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि मटेरियल सक्सेस, मेंटल एफिशिएंसी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन तभी पॉसिबल है जब आप हेल्दी हो, फिजिकली भी, मेंटली भी। To possess health, man should live in such a hygienic way as to make his body immune to disease. An ideal diet should generally consist chiefly of fruits, vegetables, grains, milk, and milk products. He should exercise and have plenty of fresh air and sunshine, practice self control of the senses, and employ techniques to relax body and mind. Overindulgence in the senses, especially sex, overeating, wrong eating, lack of exercise, lack of fresh air, lack of sunshine, lack of cleanliness, habitual worry, nervousness and stress, ungoverned emotions, all help to destroy the body's natural immunity to disease. तो हम में से सबको ये समझना चाहिए कि अगर हमें कोई हेल्थ का इशू हो रहा है तो हम यहाँ पे किस चीज में गड़बड़ कर रहे हैं। Sluggish circulation often culminates in poisonous deposits in the system. By exercise and fresh air, the tissues, cells, and red and white corpuscles become charged with fresh prana laden oxygen. The system of energization exercises, which I discovered and developed in 1916, is the most beneficial, simple, and non strenuous method for recharging the body consciously with life giving prana. तो जो भी फॉलोवर्स होते हैं परमहंस योगानंदा के, जो उनका लेसन्स पढ़ते हैं, डिसाइपल्स बनते हैं, क्रिया योगा करते हैं, तो उनको ये एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है जो गुरुदेव ने बनाई थी। तो वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी में प्राणा बढ़ाती है। प्राणा जब हमारी बॉडी में बढ़ता है, ऑक्सीजन आने से बढ़ेगा। और ऑक्सीजन क्या होती है फ्रेंड्स, जिसको हम ज्योतिष में हम बोलते हैं गुरु। जो गुरु है वो ऑक्सीजन की एनर्जी है जो हमें हमें प्राण देते हैं। तो हमारे अंदर जितना गुरु एनर्जी है, जितना ऑक्सीजन है, उतना ज्यादा हमारा सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हैप्पीनेस रहती है, एबेंडेंस, सेंस ऑफ प्रोस्पेरिटी रहती है हमारे अंदर। This, this stimulation and electrification of the tissues, cells, and blood helps to immunize them against disease. When vitality is low, that is, when the life force in the body is insufficient or not functioning properly, the body becomes susceptible to invasion of all kinds of disease and disorders. The life force will perform efficiently when kept replenished and nourished with right health habits, as mentioned above, and also with the necessary reinforcement of good character, positive thoughts, right living, and right meditation. तो यहाँ पे जो फूड की बात हुई है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वैसे आपको शायद मैंने पहले ही बताया होगा, द काइंड ऑफ फूड दैट वी चूज, एवरी फूड हैज अ वाइब्रेशन, राइट? तो जब हम नॉन वेज खाते हैं तो हम ऑलरेडी वी आर ब्रिंगिंग द एनिमल एनर्जी इनटू आवरसेल्व्स, ठीक है? तो जो हमारे लोअर चक्रास है, हमने पढ़ा भाई, ठीक है ना, फर्स्ट थ्री चक्रास आर बेस्ड ऑन द एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स, एंड व्हेन वी आर टेकिंग द एनिमल meat inside us. So first, what is happening? Whenever an animal is killed, the energy of fear is there. उसको मारा जा रहा है, पेन है, फियर है ना, बॉडीली फियर, पेन भी है और वैसे भी फियर है। तो आप वो भी कंज्यूम करते हो, और आपके जिस चक्रा में जो डिस्टॉर्शन है, वो डिस्टॉर्शन और बढ़ती है आपकी। क्यों? क्योंकि जब आप मीट खाते हो तो जो आपकी मेमोरीज है,
हर एक चीज हमारी लाइफ में हमारी पास्ट लाइफ मेमोरीज को स्टिमुलेट करती है। कैसे? जैसे मान लो आपने कुछ फोबियाज होते हैं ना, हमको, हमने कोई झरना देखा, किसी को डर लगता है, किसी को एरोप्लेन में जाने में डर लगता है, व्हाट इज दैट? A visual is creating a fear in you because in some past life you have had a bad experience. In the same manner, whenever I am eating something, मेरी जो past life memories हैं, which are based on the animalistic instincts, they get more activated in my system when I am eating non-veg. Right? So that is why we should not eat that, क्योंकि हमको तो pacify करना है वो. At least for a sadhaka, we have to pacify that. We have to erase off all those instincts. जब आप फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो जो फ्रूट्स है उसके अंदर बहुत हाई प्राणा होता है, ये आप लोग ने सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना? तो हाई प्राणा क्यों चाहिए होता है? बिकॉज इट इज मोस्टली कनेक्टेड विद अवर हायर चक्रास. फिर अब जो कलर ऑफ द फ्रूट्स होता है उससे भी आपको पता है, based upon our chakras we can choose the colors of the fruits or the vegetables, which helps us in becoming better person, having a good energy. तो जिन लोग को, हम लोग को फास्ट करने के लिए भी बोलते हैं ना, फास्ट करने के लिए क्यों बोलते हैं? कि जिससे या तो आप बिल्कुल कुछ नहीं खाओ, यू आर ओनली ऑन द वाटर एनर्जी, तो यू आर क्लेंजिंग योर सेल्फ. सो एट द सेम टाइम यू आर क्लेंजिंग योर इमोशंस ऑल्सो, you are cleansing your samskaras also. Then on the fruit fasting, when you are doing, you are trying to create more subtle vibrations within you, which comes through the fruits. कुछ वो होती है, फ्लावर टी होती है, सबने सुना होगा फ्लावर्स की जो टी होती है. Why do we drink that? Actually to increase the subtle vibrations, the purification, the purified vibrations within us. तो जब हम इतने कॉन्शियस हो जाएंगे फूड के लिए और अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, सो वी विल चूज राइटली. राइट? ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर आज बंद करेंगे. A man is not yet a master if he is still engaged in the ordinary life battles, those of sensory temptations, desires, habits, identification with the physiology and limitations of the body, restlessness of mental doubts and complexes, and soul ignorance. His perceptions are limited and include consciousness of bodily weight and other physiological conditions, of internal sensations arising from activities of the inner organs and of the breath within the body, of sensations of touch, smell, taste, hearing, and sight of hunger, thirst, pain, passion, attachment, sleepiness, fatigue, wakefulness, and of his mental powers of reasoning, feeling, and willing. The consciousness of this ordinary man is subject to fear about death, poverty, disease, and innumerable other ills. He is bound by attachments to name, social standing, family, race, and possessions. तो गुरुजी यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहे कि एक जनरल एक किसी ह्यूमन बीइंग का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना होता है. हम अपनी बॉडी, बॉडी के अंदर की सेंसेशंस, बाहर की सेंसेशन, हमारा जो मन है, मन के अंदर जो जद्दोजहद चल रही है वो चीजें, हमारा जो पास्ट है उसके अनुसार हम आज कैसे हैं, हम लोग सिर्फ उसी में बैटल करते रहते हैं जब हम एक नॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं. Spiritually, the ordinary man cannot feel his presence beyond the body except in his imagination. तो जो एक आम इंसान होता है, जब वो साधक बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसका अपना परसेप्शन कितना, कहाँ तक सीमित सीमित है कि मैं ये शख्स हूँ, अपनी पर्सनैलिटी तक, अपनी बॉडी तक. In subconsciousness, he sleeps, dreams, and can move in an unreal world of fanciful imaginings. By flights of fancy, he can move through the stars and vast spaces, but only in mind. Such thoughts do not belong to the domain of outer reality. तो गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि जब वो बंदा जो एक अनकॉन्शियसनेस का है, वो अपने सपनों में अनरियल वर्ल्ड्स में जा सकता है, फैंसीफुल इमेजिनेशन कर सकता है, बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते नहीं है, वो उसके मन का ही खेल है सारा. In short, the average human being is conscious only of his body and mind and of their outer connections. He remains hypnotized by the word delusions, expressed in many ways in ancient and present day literature, which reinforce his tacit assumption that he is a finite and limited creature. Having descended from omnipresent spirit to the little body and having become identified
With physical imperfections, the soul appears to lose its omnipresent perfect status. It must battle to overcome all the limitations of the physical world. The soul must dissolve all sense of identification with duality, both the good and the bad condition that limit the body and all the material life. तो यहाँ पे क्रक्स यही है कि गुरुजी पहले बता रहे हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे फंसा हुआ है मैटर में, मटेरियल वर्ल्ड में, और कैसे जब हम सोल when we try to become soul conscious, how slowly we strive to dissolve all that. A soul has to even, he says, a soul has to even come out of the sense of good and bad, जिसको हम गुणातीत बोलते हैं ना। ये त्रिगुणा है, त्रिगुण है ना हमारे, सत्व रजस और तमस। तो जो ईश्वर है वो त्रिगुणातीत है, वो तीनों गुणों से रहित है। तो वो गुड एंड बैड क्या है, डुअलिटी उसी का पार्ट है, त्रिगुणों का पार्ट है। तो गुरुदेव कह रहे कि हमारा वो क्या है, गोल क्या है, गुड और बैड से भी बात, जिसको हम बोलते हैं नॉन डुअल। अब वो कब आएगा, जब हम एक्सेप्टेंस मूड में, मेरी ही तो चेतना है ना, या मेरा ही तो मन है ना, एक चीज को गुड बोल रहा है, एक चीज को बैड बोल रहा है। और अगर मैं एक्सेप्टेंस मोड में आ जाती हूँ तो आई से कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बट आई एम नॉट जजिंग इट, राइट, और आई एम नॉट अटैचिंग माई सेल्फ टू इट, देन स्लोली वी कम टू द नॉन डुअल वे. Okay, the soul must dissolve all sense of identification with duality, both the good and the bad conditions that limit the body and all material life. For instance, disease is a state of sailing the boat of life over stormy seas. Health is a state of skimming over a gently stirred sea of being. Wisdom is the state of realizing one's native soul independence of all matter, no longer clinging to the fleshy boat of a Maya tossed surface existence. The liberated consciousness of man plunges boldly into the sea of spirit. तो गुरुजी क्या कह रहे हैं कि जब कैसे देखो लाइफ को, जब डिजीज हो रही है तो भाई डिजीज क्या है कि जब एक स्टॉर्मी सी है तो उसमें जब एक नाव चल रही है, दैट इज डिजीज। और हेल्थ क्या है, जब एक अच्छा शांत सी है उस पे जब बोट चल रही है तो वो आराम से सेल कर रही है। तो ही इज सेइंग जस्ट सी एवरी स्टेट एज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक दृष्टा की तरह उसको देखो। एक वो है ना कि नो लाइफ नो डेथ नो ईगो चित्ता, गुरुजी ने एक सॉन्ग लिखा था, फादर मदर हैव आई नन, आई एम ही। गुरुजी ने लिखा है या रामदास, एक सेंट थे रामदास, शायद उन्होंने लिखा है, शिवो हम केवल आत्मा शिवो हम। So how do we come to that state? That is a cosmic chant. आरती जी, आपको पता ही होगा, परमानंद योगानंद ने जो कॉस्मिक चैंट लिखे हैं ना, एहन चित दिल है ना, ना इंग्लिश, धात इंग्लिश में यही है ना, नो लाइफ नो डेथ नो ईगो चित्ता, है ना, मन फादर न मदर बुद्धि न एहन यस यस करते शिवो हम शिवो हम केवल आत्मा शिवो हम। तो वो कब आएगा, जब हम इट इज निवाना हाँ निवाना षटकम है, बट उसी उसी की तर्ज पे गुरुदेव ने ये सॉन्ग लिखा है, या तो गुरुदेव ने लिखा है या एक रामदास कोई सेंट रहे हैं, तो उन्होंने वो कॉस्मिक चैंट बनाया है उस पे बेस्ड। सो व्हाई आई वाज सेइंग इट कि ऐसे ही देखना है ना, मैं ना डिजीज है ना हेल्थ है, मैं सिर्फ उसकी दृष्टा हूँ। डिजीज की है तो मैं डिजीज की दृष्टा हूँ, हेल्थ है तो मैं हेल्थ की दृष्टा हूँ। तो उससे क्या होगा, हम किसी चीज को क्लिंग नहीं करेंगे, डिजीज के लिए हम दुखी नहीं होंगे, हेल्थ में हम ये नहीं सोचेंगे कि बस मेरे पास हेल्थ रहे डिजीज ना आ जाए, राइट। सो व्हाई गुरुजी इज टेलिंग इट, क्योंकि सोल स्टेट पे आने के लिए इन सब से अपना अटैचमेंट हटाना पड़ेगा, कि मुझे हेल्थ है तो बस मेरी हेल्थ ही रहे, या डिजीज हो गई तो मुझे डिजीज की हो गई। अगर मैं दृष्टा बन जाऊं कि मैं तो आत्मा हूँ, शिवो हम, तो क्या होगा, मैं सिर्फ दृष्टा बन के देख रही हूँ, तो जो वो सी है, जो स्टॉर्मी सी है जिसपे वो बोट चल रही है, इट विल बी जस्ट एन एक्सपीरियंस फॉर मी। बट व्हेन आई बिकम द बॉडी कॉन्शियस पर्सन and then I crib about why my life is like this, so I create more pain during those times, be it disease or any kind of bad experience of life, isn't it? हमारी तो मर्जी है ना, हम बैड एक्सपीरियंस में इतना इंडल्ज होके रोते धोते रहे, या दृष्टा बन के देखे और उससे बाहर निकले। So long as man concentrates wholly on the changing waves of the alternates of this world of relativity,
so long will he forget to re-identify himself with the underlying changeless sea of all protecting spirit. Only in soul realization does he get away from the superficial flux and attain the changeless state, one in which health and disease, life and death, pleasure and pain, and all pairs of opposites appear merely as waves of change, rising and falling, beautiful, on the ocean bosom of the changelessness. जिसके पास बुक है आप लोग ये लाइन मार्क भी कर सकते हो, बहुत सुंदर लाइन है ये. Only in soul realization does he get away from the superficial flux and attain the changeless state, one in which health and disease, life and death, pleasure and pain, all the pairs of opposites appear merely as waves of change, rising and falling on the ocean bosom of changelessness. तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक अवस्था है जहां पे हमें पहुंचना है ना. लेकिन अगर सुन लेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं पहुंचेंगे. प्रैक्टिस करना जरूरी है ना. तो हमको जो भी मंत्र मिला है, जो भी गुरु से हमको जो भी क्रिया करने के लिए मिली है, हमको वो करना जरूरी है. हमको जैसे ये हमें फर्स्ट वर्स जो बता रहा है कि हमको रोज अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, हर क्षण अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है. जब भी हमें कोई मुसीबत आती है, हमें कोई फियर आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, हमको गॉड को सरेंडर करना है. और जैसे लाइफ और डेथ है और लाइट एंड डार्क है, जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि एक समय वो आ जाए कि हम उसको दृष्टा की तरह देखें. तो जब हम दृष्टा की तरह देख पाएंगे तो कौन देख रहा होगा उस वक्त? आत्मा देख रही होगी. तो ये हमारी एक अवस्था की बात कर रहे हैं गुरुदेव. बट एवरीथिंग विल कम विद द प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज गोइंग टू हैपन. चाहे हम ज्ञान मार्ग पे चले, चाहे हम भक्ति मार्ग पे चले, जो भी हमने मार्ग चूज किया हुआ है, हमको उस पे सतत परिश्रम करना पड़ेगा. राइट. तो जब हम ये परिश्रम करेंगे तो धीरे 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 करके वो, अभी तो अपने लिए आसान होता है, हम किसी और का दुख देखते हैं, आसान है ना, तब हम दृष्टा बन जाते हैं. लेकिन वो परिस्थिति तो मुश्किल होती है जब अपने ऊपर आती है और हमको तब दृष्टा बनना पड़े. तो इसीलिए सतत परिश्रम जरूरी है, क्योंकि हमको नहीं पता ना हमारे साथ क्या होगा. वो जो फ्लाइट में गए, जिनको कश्मीर में मार दिया गया, किसी ने सोचा था क्या? So life is so unpredictable. If we don't understand the ज्ञान of Gita and the kind of conditions that are going on, we can go mad. सतत एंड अथक, वेरी गुड. यस, अथक प्रयास करना है और सतत प्रयास करना है. ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे. ठीक है, ठीक है, क्लोजिंग प्रेयर कर लेते हैं. प्रियंका, थैंक यू. इतना वेलकम सारा पारुल. नॉलेज मिलता है ना, सोते सोते भी अंदर सीधा डायरेक्ट जा रहा है. थैंक यू. सबकॉन्शियस में जा रहा है तुम्हारे. हाँ हाँ, मेरी आंखें खुली है, मैं सब सुन रही हूँ, सो इसीलिए शक्ल दिखा रही हूँ. थैंक यू सो मच. तो क्वेश्चन वेलकम. बचते ही नहीं है, इतना सारा होता है ना तो भी सीधा अंदर जा रहा है. सो थैंक यू फॉर दैट. वेलकम. इसका 10% भी हम लोग फॉलो कर लेना पारुल, तो जिंदगी सुधर जाएगी हमारी, है ना. पर पहले समझे तो सही ना, ये भगवत गीता फर्स्ट टाइम ली है हाथ में और इतनी सिंपल लग रही है क्योंकि आप कर रहे हो ये. हाँ, अभी इसलिए तो देखो, कह रही मैं हूँ. सोते हाँ, सोते मैं लिख नहीं रही हूँ, सोते सोते मैं ये भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ. अच्छा कर रही हो. थैंक यू सो मच. यस, हाँ, मेरी नोट्स तो रहती है, मैं नोट्स के बिना तो जीती नहीं हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी थैंक यू गुड. सो बस मच. यही है. वेलकम डियर. प्रैक्टिस, सबको प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स, है ना. हम सभी एक ही बोट में सेल कर रहे हैं, एक ही लेवल पे हैं सब लोग. हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली चेंजेस तो आते हैं लाइफ में. चाहे इतने से ही आए, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं ना. राइट. क्या है ना, द जर्नी टू द 1,000 miles बिगिन विद द सिंगल स्टेप, फर्स्ट स्टेप, है ना. और मैंने भी रिसेंटली सुना कि क्या था वो वर्ड, क्या बोलते हैं जो एक रात में ही जब हम वो फेमस हो जाते हैं, क्या वो इंग्लिश में एक वर्ड है ना उसका, जब हम मतलब इट वाज लाइक कि जो हम बोलते हैं ना कि एक रात में ही फेमस जब हो गए, इट इज एक्चुअली द आउटकम ऑफ द 10 years ऑफ हार्ड वर्क.
ओवरनाइट, ओवरनाइट जो हम वो हो जाते हैं फेमस, है ना, ओवरनाइट समथिंग लाइक दैट, एक पर्टिकुलर वर्ड है। हाँ वायरल बोल सकती हूँ लता। तो उसमें ये बोला था द ओवरनाइट फेम, जो हम बोलते हैं कि वाह ये कितना लकी है, ये तो बहुत फेमस हो गया है, दैट इज एक्चुअली द आउटकम ऑफ द 10 years ऑफ द हार्ड वर्क डन बाय द पर्सन। तो ओवरनाइट जो, स्टार बोलते हैं। हाँ हाँ ओवरनाइट स्टार है ना, तो हमको लगता है कि भाई ये तो बहुत बहुत बढ़िया है, ओवरनाइट स्टार बन गया है, बट उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत होती है ना। तो जो हम कह देते हैं कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव तो कह ही सकते हैं, तो भाई उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, तो हमको भी वो मेहनत ही करनी है ना। ठीक है, मजेदार जिंदगी है, अगर मेहनत करते रहोगे तो मजेदार है ना। मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ दिन बाद इस ज्ञान से बोर हो जाओगे, फिर वही बोलोगे रिलीजन तो बेकार होता है, ये तो बातें होती है ना। मेहनत करके रियलाइज कर लेते तो अच्छा लगता है, लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। ठीक है। नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुस्तादत् पृष्ठस्ते, नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व। ओम शांति शांति शांति। चलिए फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रियंका जी। हरे कृष्णा।